Welcome to Sumit's Academic Zone. I am Sumit Gupta, and in this video, I will guide you step by step on how to prepare a proper and well structured DNHE4 project report according to the academic requirements and IGNOU guidelines. If you are enrolled in DNHE4 course and unsure about the correct project format, chapter structure, how to write the introduction, framing objectives and research methodology, prepare annexures and questionnaires, or compiling the final submission. This session will provide you with complete clarity. As a tutor and academic guide, my objective is to ensure that you understand not just what to write, but how to write in a structured, examiner-friendly format. In this video, I will cover the complete chapter-wise structure, proper format style, essential components required for approval, and key academic points that improve evaluation quality. I recommend watching this session carefully and taking notes as I will be explaining each section in a systematic and practical manner. Let us begin with the structure of DNHE project report. I'm gonna take you to the guideline of DNHE project report. So this is the guideline, and after that I'm gonna explain the sample synopsis which one of my students has made and under my supervision. So this is the guideline, and I'm going to take you to the preparation of the project proposal. Okay, so these are the instructions that you have to read before finalizing your project topic. However, I'm gonna show you some of the sample topics in this video uh, which will be clarifying your doubt about the selecting project topic for DNHE project. Okay, so the components of the synopsis or project proposal of DNHE4 is as follows. Okay, here we are providing you a simple guide on how to prepare a proposal. We begin with a review of the typical part of the project proposal. The part are summarized as follows. So first thing is title. How you select the title. Okay, first you have to understand which title is suitable, and you have the interest in studying that particular um, components of the title or not. Like I have um, here I have a website called ignuallproject.com, in which when you go to DNHE section, okay, DNHE section, you will be getting these sample topics. Okay, what are the sample topic for IGNOU DNHE projects? Okay, so you can see here prevalence of obesity among preschool children studying in government and private school, factors influencing the choice of family planning, measures among couples, nutritional status of preschool children, nutritional knowledge, attitude and practice among students, preventing and controlling micronutrients deficiencies. So these are so many topics. You can pause the video and see the topics carefully, so that if you have any doubt, you can share with me and I will help you with your doubts. Okay, now these are the sample topics. So let's go to the guideline. Okay, so after selecting the title of your project report, you have to write the introduction. Okay,
including a statement of the proposed work, purpose, and significance of the work. You have to write what? Statement of the proposed work, purpose of your project work, and significance as well. So after writing the introduction, you have to go to methodology, description of the proposed plan work. So I'm gonna show it in the sample synopsis that I talked about. Okay, methodology, and at last you have to provide the references if you have any. Okay, here it is given title. For title it is given the title of your project work should be comprehensive enough to indicate the nature of the proposed work, but it should be concise and brief. So you have to take care of that. Okay, and here everything is given. I already explained it about it. So introduction. In introduction, you have to mention the statement of the problem and significance of the study, and then you have to methodology. What your methodology should include? Sample, subject and locale, and then instrument, procedures. It has to be included in your project proposal. So these are the things that you have to include in your project proposal. Okay, now I'm gonna take you to the sample. अब इस sample के अंदर आप ये देखो कि टॉपिक क्या है. टॉपिक है डाइटरी असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल नॉलेज अमॉन्ग प्रेग्नेंट वुमन. ठीक है, तो ये किसी स्टूडेंट ने मेरे बनाया था, जिसमें आप देखो सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट रखना है. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, रैशनल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, rationale of the study or significance of the study, objectives of the study, methodology और limitation of the study. ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट्स आपके होने चाहिए आपके सिनॉप्सिस के अंदर. रेफरेंस एंड द क्वेश्चनर, अगर आपने क्वेश्चनर यूज किया है प्रोजेक्ट के अंदर तो. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है. ठीक है, तो पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन डालोगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एटलीस्ट 2 पेज आप जो है आपका टाइटल का इंट्रोडक्शन डालोगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने रेशनल ऑफ द स्टडी या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिखना है. ठीक है, रेशनल ऑफ द स्टडी में आपको मेंशन करना है कि क्यों आप स्टडी कर रहे हो. ठीक है, और आपका स्टडी करने का पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है. Then you have to objectify, like what are the objectives you are mentioning in your project proposal for your project work. ठीक है, जैसे आप जब objectives लिखोगे तो it should start like to assess, to evaluate, to examine, to identify, ऐसे आपको start करना है. like to assess the dietary pattern and nutritional intake of pregnant women in Naroda and compare them with recommended dietary allowances. ठीक है, तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव्स 4 या 5 मेंशन करने होते हैं. मेथोडोलॉजी के अंदर अगर आप आओगे तो पहले आपको स्टडी एरिया, किस स्टडी एरिया पे आप स्टडी कर रहे हो वो मेंशन करना है. देन आपको स्टडी डिज़ाइन. ठीक है, स्टडी डिज़ाइन लाइक आपको अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, और या फिर कोई और रिसर्च डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है. ठीक है, देन सैम्पल साइज. आपका प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो अगर वो सर्वे बेस्ड है तो कितना सैम्पल साइज आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो. ठीक है, लाइक ये जो स्टडी एरिया है आपका, वहाँ पे पॉपुलेशन अगर 1000 है. ठीक है, तो आप उसमें अपने सर्वे का सैम्पल साइज कितना रख रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है. ठीक है, तो सैम्पल साइज आप मेंशन करोगे 100 प्रेग्नेंट वुमेन्स रिजाइडिंग इन नरोदा. ठीक है, ऐसे आप सैम्पल साइज मेंशन करोगे. सैम्पल टेक्निक. ठीक है, तो सैम्पल टेक्निक में आप क्या करेंगे यूज?
सैम्पल टेक्निक के अंदर आपने जो सैंपल लाइक पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल निकाला है वो आपने कैसे निकाला है, तो दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन सैंपल टेक्निक। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि convenience sampling will be used to select participants from government health centers। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक का यूज हुआ है सैंपल सिलेक्शन के लिए, यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। ओके, नाउ टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट दैट will be used or that you are going to use in your project report, that has to be mentioned under instrument for data collection। तो इस क्योंकि ये सर्वे बेस्ड है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चनायर जो है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, जिसके क्वेश्चनायर के अंदर सेक्शन ए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा और सेक्शन बी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन है। लाइक डेमोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और न्यूट्रिशनल नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी में होंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन आयर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें यूज, डाइटरी असेसमेंट टूल। ठीक है, 24 आवर डाइटरी रिकॉल फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आयर, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। तीसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ऑप्शनल विजुअल हो गया। तो ये तीसरा जो है weight and height of participant to calculate BMI and assess nutritional status। ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो है ये यहाँ पे यूज हुआ है DNHE प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चनर को यूज करके डेटा कलेक्शन इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हम लिमिटेशन डालेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं एट द टाइम ऑफ doing the study, that has to be mentioned, like as the study is limited to one semi-urban locality, the finding cannot be generalized to all pregnant women in Ahmedabad। ठीक है, the dietary recall method is dependent on memory and honesty of respondents, which may introduce recall bias or under over estimation of intake। ठीक है, तो ऐसे करके लिमिटेशंस हो गए। तो और लास्ट में आपको जो भी आपने इंफॉर्मेशन के आपके जो सोर्सेज हैं उसको एज अ रेफरेंस यहाँ पे आपको डालना है APA फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आपको जो मैंने इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्वेश्चन आयर का जिक्र किया था वो क्वेश्चन आयर यहाँ पे अटैच होगा एज अ एनेक्चर। ठीक है, जिसमें आप देख लो डेमोग्राफिक सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डाइटरी प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, उसके बाद न्यूट्रिशनल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड था रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके सिनॉप्सिस बनाना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसमें प्रोजेक्ट को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट का भी सैंपल आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसके रिगार्डिंग सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इस वीडियो के नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं DNHE4 के वहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर है जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिनॉप्सिस जब बना लोगे तो उसके बाद आपको वहाँ अपने स्टडी सेंटर पे जो DNHE का काउंसलर है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपना सिनॉप्सिस लेके जाना है, उनको दिखाना है, वो आपके सिनॉप्सिस के ऊपर साइन करेंगे एंड वो स्टाम्प लगाएंगे तो आपका हो जाएगा DNHE प्रोग्राम DNHE सिनॉप्सिस अप्रूव। ठीक है,
जब आप सिनॉप्सिस लेके जाते हो आपके स्टडी सेंटर पे, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा उससे के अंदर अटैच होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा क्या होता है वो आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड है प्रपोजल परफॉर्मा के ऊपर। ठीक है, तो जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के अंदर जो चैप्टराइजेशन होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। पहला जो चैप्टराइजेशन होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा चैप्टर होगा मेथोडोलॉजी, तीसरा ऑब्जर्वेशन की इंट्रोडक्शन को का आपको पता है, मेथोडोलॉजी का आपको पता है। ठीक है, जो कि सिनॉप्सिस में ही मेंशन है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप, जो भी आप जो डेटा कलेक्ट करोगे और डेटा एनालाइज करोगे तो उस टाइम पे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखोगे, जो भी आपने डेटा कलेक्शन करके उसको जब आपने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो आपने क्या क्या रिजल्ट्स देखे हैं उसको आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टेबल्स, ग्राफ्स, इंटरप्रिटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, वो रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर आ गया। कंक्लूजन में आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट वर्क का कंक्लूजन लिखना है। सो दिस वाज ऑल फॉर DNHE प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अगर मेरे से कुछ मिस हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंपल के अलावा, तो आप डेफिनेटली कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप से आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट गाइडेंस के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे डेफिनेटली आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा, और आपको एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस या फिर इंटर्नशिप वर्क या फिर किसी भी टॉपिक पे कोई भी इश्यू है तो डेफिनेटली आप हमें एक बार कांटेक्ट करें। विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यू एंड विल टेक यू इन अ राइट पाथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।